آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کریں گے۔ کراچی میں دہشت گردی کے واقعے سے متعلق ممتاز عالم دین مفتی تقی عثمانی کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی۔ حملے کے وقت مفتی تقی عثمانی گاڑی میں موجود تھے، بتانا ہے کہ وہ محفوظ ہیں۔ فائرنگ کے واقعے میں گاڑی میں سوار 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق نیپا چورنگی کے قریب گاڑی پر 2 افراد سے فائرنگ کی گئی۔ یہ واقعہ پیش آیا اور اس پر تحقیقات ابھی جاری ہیں۔ تفصیل جانیں گے بیورو چیف جیو نیوز کراچی فہیم صدیقی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ فہیم صدیقی، اس واقعے کی تفصیلاً اپڈیٹس ہم سے شیئر کیجیے گا۔ اب تک کی انیشل انفارمیشن کیا آپ تک پہنچی ہے اور کیا ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیں، یہ ڈیولپنگ اسٹوری ہے اور اس میں اب جو چیزیں کنفرم ہوئی ہیں، فائنل ہوئی ہیں، وہ یہ ہے کہ واقعہ ایک ہی ہے۔ اس سے پہلے یہ اطلاعات آ رہی تھیں کہ 2 واقعات ہوئے ہیں نیپا چورنگی اور شارع فیصل پر نرسری کے مقام پر، لیکن اب اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ یہ ایک ہی واقعہ ہے جو نیپا چورنگی پر پیش آیا۔ تاہم اس میں 2 گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا اور دونوں گاڑیاں جو ہیں دارالعلوم کورنگی سے وابستہ تھیں۔ ان میں سے ایک گاڑی میں مفتی تقی عثمانی تھے اور دوسری گاڑی میں ان کا ایک ڈرائیور اور ان کا ایک گارڈ موجود تھا۔ یہ گارڈ جو دوسری گاڑی میں تھا صنوبر خان، یہ ان کا پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ تھا، جبکہ اسی گاڑی کے ڈرائیور عامر شہاب، یہ ان میں سے عامر شہاب جو ہیں وہ شدید زخمی بتائے جا رہے ہیں اب تک، جن کو جس وقت وینٹیلیٹر پر ہیں، جبکہ ان کا جو پرائیویٹ سیکورٹی گارڈ تھا صنوبر خان، یہ جاں بحق ہوا ہے۔ جبکہ دوسری گاڑی جس میں خود تقی عثمانی صاحب موجود تھے، اس پر بھی فائرنگ ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ جو ایک محمد فاروق نامی پولیس اہلکار تھا، یہ جاں بحق ہوا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں ہمیں ڈی آئی جی ایسٹ کی جانب سے کنفرم کی گئی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دوسرا جاں بحق شخص صنوبر خان مولانا کا پرائیویٹ گارڈ تھا، جبکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلح افراد جو موٹر سائیکلوں پر سوار تھے، انہوں نے دونوں گاڑیوں پر 9mm پستولوں سے دونوں جانب سے فائر کیا ہے اور موقع سے جو ہے وہ 20 سے زائد خول 9mm کے ملے ہیں۔ دوسری گاڑی کے ڈرائیور کے حوالے سے پہلے یہ اطلاع آ رہی تھی کہ وہ دارالعلوم کورنگی کے کوئی اس سے وابستہ کوئی مولانا ہے، مولانا شہاب، لیکن اس بات کو کنفرم کیا ہے مفتی زبیر اشرف نے، جو ذمہ دار ہیں دارالعلوم کورنگی کے۔ ان کا کہنا ہے کہ مولانا شہاب نام کا کوئی شخص جو ہے وہ ہم سے وابستہ نہیں ہے۔ اس گاڑی کے ڈرائیور پہلے شہاب ہوا کرتے تھے، اب ان کا بیٹا عامر شہاب ہے جو یہ گاڑی چلاتا ہے، وہ زخمی ہے۔ عامر شہاب کو اس وقت وینٹیلیٹر پر رکھا ہوا ہے۔ اس بات کی تصدیق جو ہے جناح اسپتال کی ڈائریکٹر سیمی جمالی نے بھی کی ہے کہ وہ شدید زخمی ہیں۔ جی اچھا فہیم صدیقی صاحب، تھوڑی سی وضاحت چاہیں گے، مجموعی طور پر دونوں جو گاڑیوں پر فائرنگ کی گئی ہے، کتنے افراد جاں بحق ہیں، کتنے زخمی ہیں؟ اس واقعے میں جو فائرنگ کے 2 واقعات، فائرنگ کا ایک ہی واقعہ جو 2 گاڑیوں پر ہے، اس میں 2 افراد جاں بحق ہیں جو دونوں سیکیورٹی گارڈ ہیں۔ ان میں سے ایک پولیس گارڈ ہے جبکہ دوسرا پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ ہے۔ 2 افراد جاں بحق ہیں جبکہ ایک شخص اس وقت تک زخمی ہے، جس کا جو عامر شہاب ڈرائیور ہے، جو دوسری گاڑی میں تھا جس میں مولانا تقی عثمانی صاحب موجود نہیں تھے، وہ زخمی ہے۔ صحیح، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ عامر شہاب زخمی ہیں اور ڈائریکٹر جناح ہاسپٹل سیمی جمالی نے کہا ہے کہ اس کی حالت کے بارے میں بتایا وہ وینٹیلیٹر پر ہے، جبکہ جاں بحق افراد کے بارے میں آپ نے بتایا کہ محمد فاروق نامی پولیس اہلکار ہے اور صنوبر خان ہے۔ ایک ہی واقعے میں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ 2 گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پولیس حکام سے آپ کی بات ہو سکی ہو، پولیس حکام کی جانب سے کیا بتایا گیا ہے اب تک؟ اور گورنر سندھ نے جیسے اب سے کچھ دیر پہلے بتایا کہ مفتی تقی عثمانی نے بتایا تھا کہ ان کو دھمکیاں مل رہی تھیں، اس بارے میں کیا اقدامات کیے گئے تھے اب تک کی انفارمیشن کے مطابق؟ دیکھیں، یہ بات صحیح ہے کہ مفتی تقی عثمانی اور شہر کی کچھ اور شخصیات کے حوالے سے اطلاعات تھیں کہ انہیں نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور کچھ عرصے پہلے جس طرح سے کچھ احکامات جو ہے وہ سندھ پولیس کو ملے تھے سپریم کورٹ کی جانب سے، اس کے بعد شہر کے بعض افراد سے سیکیورٹی واپس لی گئی تھی، اس میں مفتی تقی عثمانی سمیت اور بھی لوگ تھے۔ جس کے بعد جو ہے یہ جب سیکیورٹی تھریٹس آئی تھیں تو مفتی تقی عثمانی کو پولیس کی سیکیورٹی فراہم کر دی گئی تھی اور آج بھی ان کے ساتھ ایک پولیس گارڈ موجود تھا۔ اس حوالے سے یہ جو ہماری بات ہوئی ہے ڈی آئی جی ایسٹ سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ واقعے سے جو شواہد ہم نے اکٹھے کیے ہیں ان کے مطابق اب تک 9mm پستولوں سے فائرنگ کی گئی ہے اور دونوں جانب سے دونوں گاڑیوں کے اوپر فائرنگ کی گئی ہے۔ موقع سے جو ہے کوئی 20 سے زائد 9mm کے خول ملے ہیں اور جو دیگر شواہد ہیں وہ بھی وہاں سے اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ فورینسک ڈپارٹمنٹ کی ٹیم موقع پر پہنچی ہے، جبکہ دیگر تحقیقاتی حکام بھی جو ہے وہ موقع پر پہنچ چکے ہیں اور وہاں سے شواہد اکٹھے کر رہے ہیں۔ اچھا صدیقی صاحب، اس سے متعلق کچھ پتہ چلا ہے کہ مفتی تقی کے ساتھ 2 ہی گاڑیاں تھیں یا پھر ان کے قافلے میں اور بھی گاڑیاں تھیں؟ یہ پتہ چلا ہے کہ یہ 2 ہی گاڑیاں تھیں، جن میں سے ایک گاڑی میں خود مفتی تقی عثمانی تھے جبکہ دوسری گاڑی میں ان کا گارڈ اور ان کا ایک ڈرائیور موجود تھا۔ وہ دونوں شخص جو ہیں وہ پرائیویٹ ہیں، جبکہ مفتی تقی عثمانی کے ساتھ جو شخص اس واقعے میں جاں بحق ہوا ہے وہ پولیس گارڈ تھا جو اس واقعے میں جو ہے وہ جاں بحق ہوا ہے۔ مفتی تقی عثمانی جو ہیں وہ اس واقعے میں محفوظ رہے ہیں۔ جہاں پر یہ دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا ہے، جو ایک ہی واقعہ ہے، 2 گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا، کچھ انیشل رپورٹس یہ مل سکی ہیں کہ کیا ان کو گھر سے ہی ریکی کی جا رہی تھی، ان کا پیچھا کیا جا رہا تھا؟ اور جہاں پر یہ انسیڈنٹ پیش آیا ہے وہاں پر کوئی سی سی ٹی وی فوٹیجز موصول ہو سکی ہوں، کوئی کیمرے لگے ہوں؟
देखिए, इस हवाले से पुलिस हुकाम कोशिश कर रहे हैं कि शवाहिद को इकट्ठा कर लिया जाए, ताहम ये वाक़या जिस तरह से पेश आया इससे कोई इनकार नहीं है कि ये वाक़या मुकम्मल तहक़ीक़ के बाद ही पेश आया है। जो पुलिस हुकाम है वो इस बात को चेक कर रहे हैं कि इससे पहले भी जो मुफ्ती तकी उस्मानी की जो मूवमेंट रही है उसको चेक किया जाए कैमरास की मदद से कि वो कहाँ कहाँ से गुजरते रहे हैं और कहाँ से अभी गुजर के इस मुकाम तक पहुंचे थे। इस रूट के ऊपर जहाँ से गुजर के मुफ्ती तकी उस्मानी आए हैं वहाँ के कैमरास की जो है फुटेज चेक की जा रही है और जो दीगर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के अफराद हैं वो इस वक्त गाड़ी से भी शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं और मौके से जो खोल मिले हैं उन्हें भी कब्जे में लेकर उनको जो है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का जो बैलिस्टिक डिपार्टमेंट है वहाँ से उनको चेक किया जा रहा है, उनकी मैचिंग चेक की जा रही है कि क्या ये असला जो है जो इस्तेमाल हुआ है इससे पहले क्या किसी वाक़े में इस्तेमाल हो चुका है। ठीक है, फ़हीम सिद्दीकी साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। डेवलपिंग स्टोरी है, अपने देखने वालों को एक बार फिर बताते चलें कि ये डेवलपिंग स्टोरी है, जैसे जैसे हमें अपडेट्स मौसूल हो रही हैं आपसे शेयर कर रहे हैं। पहले बताया जाता 2 वाक़यात है, अब बताया जा रहा है 1 वाक़या है, नीपा के करीब पेश आया है। 2 गाड़ियाँ इसके नतीजे में मुतासिर हुई हैं, 2 गाड़ियों को निशाना बनाया गया। एक गाड़ी में मुफ्ती तकी उस्मानी मौजूद थे जो कि महफूज हैं, 2 अफराद जाम बहक हैं, 1 अफराद ज़ख्मी हैं। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने मुफ्ती तकी उस्मानी से टेलीफोन पर बात की है, मजीद उन्हीं से जानेंगे। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अंसार अब्बासी साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से आपकी क्या गुफ्तगू हुई है? देखिए, मैं तकरीबन कोई घंटा पहले नमाज पढ़ के जुमे की जब मैं वापस आया तो जब मुझे ट्विटर के ऊपर पता लगा तो मेरी हजरत से बात हुई। मैं उनके टेलीफोन बिजी थे वैसे, लेकिन जब बात हुई तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इनिशियल रिपोर्ट्स कुछ अजीब किस्म की थी तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल अल्लाह ताला ने हिफ्ज़ व अमान में रखा अपने। और उन्होंने ये भी बताया कि मैं सिर्फ वो नहीं थे बल्कि उनकी अहलिया और 2 पोते भी थे उनके साथ, यानी कि जब वो जा रहे थे कहीं तो उनके साथ उनकी अहलिया 2 पोते भी थे और अल्लाह ताला ने उन सबको महफूज रखा। आज तो ड्राइवर जख्मी हुआ और जो गार्ड है उनकी डेथ हो गई थी। और उसमें जब मैंने उनसे पूछा तो वो बता रहे थे कि जी फायरिंग करते हुए आए पीछे से, मतलब है कि उनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग की और आगे जाके फिर वापस मुड़े हैं वो लोग, और वापस मुड़ के तो फिर बल्कि उनके अल्फाज से कि बुलेट्स की बारिश हुई है, फायरिंग की बारिश जैसे होती है ना, इस तरह से एक्सट्रीम किस्म की फायरिंग हुई उनके ऊपर। तो अल्लाह ताला ने उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखा। तो मैंने पूछा उनसे हजरत के आपके साथ कोई और भी गार्ड वार्ड होते हैं? एक तो ज़ाहिर है जिस तरह आप रिपोर्ट ऑलरेडी कर ही चुके हैं, तो वो कह रहे थे कि पीछे भी गाड़ी थी, लेकिन उस वक्त चूंकि घंटे पहले मेरी बात हुई थी तो उस वक्त उनको ये नहीं पता था कि पीछे जो गाड़ी थी उसके साथ क्या हुआ, जो कि आप ज़ाहिर है जिस तरह आप लोग बता भी रहे हैं, मीडिया सारा बता भी रहा है, टेलीविजन चैनल बता रहे हैं कि वहाँ पे भी एक गार्ड की शायद डेथ हो गई है और ड्राइवर जो है वहाँ पे उनके जख्मी हो गए। सो उनके साथ तो मैंने ये भी हजरत से पूछा कि कौन हो सकते हैं, तो उनको है ज़ाहिर है इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि कौन हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। पाकिस्तान के टॉप मोस्ट रिलीजियस स्कॉलर को इस तरह से टारगेट किया जाना, जो कि मेरी ज़ाती राय में इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की बहुत बड़ी साजिश थी। और मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ हुकूमत से, फेडरल गवर्नमेंट से भी और सूबाई हुकूमत से भी और एजेंसी से भी कि वो इस साजिश को नाकाम बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और जो लोग इस साजिश में इन्वॉल्व थे उनको पकड़ा जाएगा। अंसार अब्बासी साहब, अभी आपने बताया कि मौलाना तकी से जब आपकी बात हुई है तो उन्होंने बताया कि अहले खाना भी मौजूद थे उनके साथ गाड़ी में, इसकी ज़रा वजाहत कीजिएगा और दोबारा से एक बार फिर अगर आप हमारे देखने वालों के लिए बता सकें क्या आपकी तफसीलन गुफ्तगू हुई। देखिए, उनके साथ उनकी अहलिया भी थी और साथ में 2 पोते थे उनके, यानी ये 4 फैमिली के लोग थे और अल्हम्दुलिल्लाह चारों के चारों महफूज रहे इस हमले से। और तकी साहब ने ये बताया मुझे कि जी गोलियों की बारिश, जैसे कि बारिश होती है गोलियां की, इस तरह उनके ऊपर बरसाई गई। और वो कहते मुझे बिल्कुल हमें आइडिया ही कुछ नहीं हुआ कि हो क्या रहा है। और फिर ये बात फिर उन्होंने बताई कि जब पीछे से आके फायरिंग करते करते वो आगे गए तो आगे से फिर मोटरसाइकिल वापस मुड़े और फिर उन्होंने फायरिंग की। और ये मौलाना हजरत का ये कहना था कि वो शायद इंश्योर करना चाहते थे कि हर हाल में जो उनका मकसद था वो मकसद पूरा हो, लेकिन अल्लाह ताला ने, और मौलाना भी ज़ाहिर है अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने उनको उनकी अहलिया को, बच्चों को महफूज रखा। लेकिन एट द सेम टाइम ही वाज वेरी कंसर्न कि जी एक गार्ड की जिस तरह शहादत हो गई और फिर उनके ड्राइवर के बारे में वो कंसर्न थे कि उनको जख्मी हुए। लेकिन उनको जो पीछे गाड़ी थी, मैंने पूछा जब उनसे कि आपके साथ कोई और भी कोई गाड़ी या कोई गार्ड इस तरह होते, तो उन्होंने कहा था मेरे साथ पीछे गाड़ी थी, लेकिन उस गाड़ी के बारे में उस वक्त चूंकि मेरी 1 घंटा पहले बात हुई थी तो उस वक्त उनके पास कोई इत्तलात नहीं थी।
تو جو ابھی جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ جی اس میں بھی ایک گارڈ شہید ہو گئے اور ایک جو اس کے ڈرائیور تھے وہ شاید شدید زخمی ہے دوسری گاڑی کی. اچھا انصار عباسی صاحب، آپ سے گفتگو میں انہوں نے کوئی دھمکیوں کا ذکر کیا، جس طرح انہوں نے گورنر سندھ سے بھی ذکر کیا ہے، سیکیورٹی تھریٹس کا کسی پرٹیکولر تنظیم کا نام لیا انہوں نے؟ دیکھیں دھمکیوں کی تو بات میں نے ایکچولی پوچھی نہیں، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایسے حالات میں ان کو فون کالز بھی آ رہی تھی، لوگ بھی ان کے پاس ہوں گے ڈیفینیٹلی، لیکن میں نے یہ ان سے ضرور پوچھا کہ کس نے یہ کروایا ہوگا کوئی. تو انہوں نے اس وقت مجھے کہا کہ ڈیفینیٹلی کہ ظاہر ہے یہ کیسے، ابھی تو کچھ پتہ نہیں کہ کس نے یہ کیا ہوگا، لیکن بس یہی بات ہے کہ دیکھیں یہ تو اب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کرے کہ اللہ کہ یہ جو جن لوگوں نے یہ حملہ کیا ہے ان کو پکڑا جائے، سازش کو بے نقاب کیا جائے. بیکاز دیکھیں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جس قسم کا جو کراچی میں جس طرح ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے امن ہوا، PSL ہوا، اس طرح جو حالات ابھی خراب کرنے کی یہ جو سازش تھی، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے خدا نخواستہ اگر وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ کتنے حالات خراب ہونے تھے. تو اس لیے یہ اب حکومت کی ظاہر ذمہ داری ہے، اور گورنر نے تو آپ کو جیسے بتا بھی آ چکے ہیں، گورنر نے بتایا کہ حضرت تقی عثمانی صاحب نے آلریڈی گورنمنٹ کو انٹیمیٹ کیا ہوا تھا. اور پھر یہ دیکھیں بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ جب اس طرح کی آلریڈی حالات تھے تو کیوں وڈرا کی گئی انیشیلی ایسے لوگوں سے سیکیورٹی آپ نے کیوں وڈرا کی، اور پھر دوبارہ سے حیرانیہ لوگ دیے گئے، لیکن کیا وہ پروٹیکشن یا اس قسم کے پروٹیکٹیو میئرز لیے گئے یا لیے جا رہے ہیں؟ بیکاز اگر تقی صاحب کے اوپر اس قسم کا حملہ ہو سکتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی کیا اور پاکستان کے دوسرے علاقوں میں، خاص طور پہ کراچی میں اور بھی بہت بڑے بڑے علماء دین ہیں. تو اس لیے حکومت کی اور یہ رسپانسبلٹی ہے کہ یہ انشور کرے کہ اللہ نہ کرے کہ اس طرح کا واقعہ کسی دوسرے کے ساتھ پیش آئے. ٹھیک ہے، ایڈیٹر انویسٹیگیشن دا نیوز انصار عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ مفتی تقی عثمانی سے ان کی تفصیلاً گفتگو ہوئی، اور مفتی صاحب نے بتایا کہ ان کے ساتھ گاڑی میں اہلیہ اور 2 پوتے بھی موجود تھے. مفتی صاحب، ان کی اہلیہ 2 پوتے محفوظ رہے ہیں اس حملے میں. انہوں نے بتایا اس واقعے سے متعلق کہ فائرنگ کرتے ہوئے پہلے پیچھے سے آئے جو ملزمان تھے، جب انہوں نے فائرنگ کر کے کراس کی گاڑی، اس کے بعد واپس مڑے اور پھر فائرنگ کی اور گولیوں کی بوچھاڑ کی. ایک بار پھر بات کریں گے بیورو چیف جیو نیوز کراچی فہیم صدیقی بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں اور ان سے ڈیٹیلز جانیں گے. فہیم صدیقی، ایک تو تازہ ترین جو بھی انفارمیشن آپ کے پاس آئی ہے وہ ہم سے شیئر کیجیے گا، اور آپ سے کچھ دیر پہلے IG سندھ نے گفتگو کی اور کہا پرٹیکولرلی نیپا فلائی اوور سے متعلق انہوں نے بتایا کہ 500 سے زائد تھریٹ الرٹس ہیں، وہاں پر بہت سے مشتبہ افراد پکڑے بھی گئے ہیں. IG سندھ کی جانب سے کوئی ہنگامی اقدامات، ہدایات دی گئی ہیں وہاں پر پرٹیکولرلی؟ جی انہوں نے جو ہے ابھی تک اس واقعے کے حوالے سے جو ہے وہ تفصیلات پولیس حکام سے بھی مانگی ہیں، اور جو ان کو پولیس حکام نے تفصیلات دی ہیں ان کے مطابق انہوں نے کچھ اقدامات کرنے کا بھی کہا ہے. ایک اپڈیٹ جو بھی ہمارے پاس آئی ہے وہ یہ ہے کہ مفتی تقی عثمانی کو آج ملتان میں ہونا تھا. انہوں نے گزشتہ روز ملتان میں ختم بخاری شریف میں ایک درس دینا تھا، لیکن کل شام ان کی جو شام کی فلائٹ تھی وہ فلائٹ کینسل ہو جانے کی وجہ سے جو کراچی سے ملتان جا رہی تھی وہ نہیں جا سکتے تھے. کل رات 10 بجے ان کا یہ درس تھا، جس کی وجہ سے وہ آج کراچی میں ہی تھے، اور ان کا یہ جو ان یوزول ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آج کی مومنٹ تھی کہ وہ یہاں سے اپنے مدرسے سے نکل کر جو ہے گلشن اقبال پہنچے تھے. وہ کہاں جا رہے تھے اس حوالے سے بھی کچھ کلیئر نہیں ہے، تو ہم یہ بات کنفرم تھی کہ ان کے ساتھ ان کے اہل خانہ بھی موجود تھے جو اس واقعے میں جو ہے وہ بچ گئے ہیں، اور جس طرح سے تقی عثمانی صاحب اور جو ان کے ساتھ ان کے اہل خانہ تھے اس واقعے میں محفوظ رہے ہیں. ٹھیک ہے، فہیم صدیقی صاحب ہمیں رپورٹ کر رہے تھے. اب سے کچھ دیر پہلے انصار عباسی صاحب نے بھی ہمیں یہی بتایا کہ ان کی مولانا سے تفصیلاً گفتگو ہوئی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ گاڑی میں ان کے ساتھ ان کے اہل خانہ بھی موجود تھے. یہاں پر شامل کریں گے انچارج CTD راجہ عمر خطاب کا بیان، جو کہتے ہیں کہ ممکنہ طور پر 2 موٹر سائیکلوں پر 4 دہشت گردوں نے فائرنگ کی. عینی شاہدین کے مطابق دہشت گرد فائرنگ کر کے فرار ہو گئے. انچارج CTD راجہ عمر خطاب کا یہ بھی کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر مفتی تقی عثمانی کا تعاقب کیا گیا، باقاعدہ ریکی کے بعد کاروں پر فائرنگ کی گئی. ممکنہ طور پر 2 موٹر سائیکلوں پر 4 دہشت گردوں نے فائرنگ کی. عینی شاہدین کے مطابق دہشت گرد فائرنگ کر کے فرار ہو گئے. انچارج CTD راجہ عمر خطاب کا بیان، جنہوں نے اس واقعے سے متعلق بتایا کہ مزید بھی تحقیقات جاری ہیں، انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اور یہ کہا کہ ممکنہ طور پر مفتی تقی عثمانی کا تعاقب کیا گیا. اور ابھی تک جو لوگ بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 موٹر سائیکلوں پہ 4 لوگ ہو سکتے ہیں، اس کی کنفرمیشن نہیں ہے میرے پاس. اس کے بعد دہشت گرد فرار ہو گئے ہیں، اور یہ ممکنہ طور پر ان کا تعاقب کیا گیا اور باقاعدہ ریکی کے ساتھ یہ کام ہوا ہے. اور یہ کراچی میں ہونے والی حالیہ فرقہ وارانہ دہشت گردی میں جو اضافہ ہو رہا ہے یہ اس کے تانے بانے مجھے لگتے ہیں.
आपने बयान मुलाहिजा किया। इंचार्ज CTD राजा उमर खताब कह रहे थे कि मुमकिन तौर पर 2 मोटरसाइकिलों पर 4 दहशतगर्दों ने फायरिंग की और कह रहे थे कि बाकायदा रैकी के बाद कारों पर फायरिंग की गई। उनके मुताबिक हमारे साथ एक बार फिर फ़हीम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। फ़हीम साहब, जैसे कि आप भी अब से कुछ देर पहले बता रहे थे कि आप तक जो इत्तलात पहुंची है उसके मुताबिक मौलाना को आज मुल्तान में होना था। इंचार्ज CTD भी कह रहे हैं कि बाकायदा रैकी की गई है। तो क्या जो अभी तक एविडेंस इकट्ठा किया गया है उससे मुतल्लिक या CCTV वीडियो से कुछ ऐसा पता चला है कि ये जो मुसल्लह अफराद थे इन्होंने फॉलो किया हो मौलाना को? देखिए, यकीनन फॉलो तो किया गया है, ताक़ुब किया गया है, इस मुकाम पर आकर जो है निशाना बनाया गया है। इस हवाले से एक बात जो अभी मैं रिकॉल कर रहा था वो यही थी कि ये जो नीपा चुरंगी है इसके करीब जो कैमराज हैं वो नहीं लगे हुए हैं और यहाँ पर पहले भी इस नौयत के वाक़यात हुए हैं, फायरिंग के वाक़यात हुए हैं। तो ये एक ऐसा स्पॉट है शायद जिसको जो है टारगेट किलर्स ने पहले भी किया हुआ था, स्पॉट किया हुआ था कि यहाँ पर अगर फायरिंग की जाए तो कुछ फुटेज नहीं बनेगी। ताहम जो हुक्काम है उनका ये कहना है कि जिस रूट से गुजर कर मुफ्ती तकी उस्मानी ये दोनों गाड़ियां आई हैं उस रूट पर लगे हुए कैमरास की फुटेज से मदद ली जा रही है और ये देखा जा रहा है कि कौन इनको फॉलो कर रहा था, क्योंकि अब तक ये बात कंफर्म है कि जो मुसल्लह अफराद थे वो मोटरसाइकिलों पर सवार थे और जो अहनी शाहिदीन ने भी बताया है कि उनकी तादाद 4 थे, वो 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे। उन्होंने गाड़ियों के ऊपर दोनों जानिब से फायरिंग की है जिसके नतीजे में 2 गार्ड जिनमें से एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है और एक पुलिस गार्ड जाँ भाग हुआ है, जबकि दोनों गाड़ियों के ड्राइवर जो है वो जख्मी है। इसमें से आमिर साहब जो है वो उस गाड़ी में थे जिसमें इनका प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड था, जबकि जिस गाड़ी में मौलाना तकी उस्मानी थे इसका गार्ड सरफराज भी जो है वो इस वाक़े में जख्मी हुआ है। आप ये बता रहे हैं फ़हीम सिद्दीकी कि नीपा फ्लाईओवर पर कैमरे नस्ब नहीं है, जहां पर इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात रोनुमा होते रहे हैं, तो फिर तो ये बहुत बड़ी नाअहली है कि यहाँ पर कैमरे नहीं नस्ब और यहाँ पर वो मदद नहीं हासिल की जा सकेगी, पुलिस को तहकीकात में हेल्पफुल नहीं हो गई। जी यकीनन ये एक बड़ी नाकामी हो सकती है कि जिस मुकाम पर पहले भी वाक़यात हो चुके हों वहाँ अब तक जो है वो कैमराज नस्ब नहीं किए गए हैं। इस हवाले से जो है यकीनन ये एक बड़ी चीज़ है जिसको देखे जाने की ज़रूरत है। तफ्तीशी हुक्काम भी यकीनन इस बात को इस एंगल से यकीनन देखेंगे कि एक ऐसा रूट जिसके ऊपर जो है कैमराज होने चाहिए, अहम तरीन रूट है ये यूनिवर्सिटी रोड, उस पर इसी मुकाम पर पहले भी वाक़यात हुए हैं जिनकी फुटेजेस नहीं मिल सकी हैं। ताहम उनका ये कहना है कि इस बात से ज़्यादा अहम ये है कि जो रूट पर कैमरे लगे हुए हैं जहाँ से गुजर कर आए हैं उनकी फुटेज से जो है कोई मदद मिल सके और ये देखा जा सके कि इन गाड़ियों के पीछे कौन से मोटरसाइकिल सवार थे और उनकी कोई शनाख्त मुमकिन हो सके। अच्छा, अब से कुछ देर पहले इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। वो दावा करते हैं कि शाम तक मुल्जिमान का पता लगा लिया जाएगा, उनको पकड़ लिया जाएगा। पुलिस हुकाम से आपकी बात हुई है, क्या लीड्स मिली हैं जो इस दावे को तक़वियत बख्श सके? देखिए, उनका ये कहना था कि मैंने IG सिंह से ये कहा है कि आज 2-4 घंटों में इस बात को मुमकिन बनाएं कि जो मुल्जिमान हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, उन्हें पकड़ा जाए। जो मेरी काम से बात हुई है IG सिंह से भी और DIG ईस्ट से भी, उनका ये कहना है कि हम मौके से शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं, हमने बैलिस्टिक रिपोर्ट्स भी हासिल कर रहे हैं, जो कॉल मिले हैं उनको जो है वो हमारा जो डेटा है उससे हम मैच भी कर रहे हैं कि क्या पहले किसी वारदात में ये असला इस्तेमाल हुआ हो तो कोई मैचिंग हो के कोई रिकॉर्ड मिल सके, और साथ ही जो गाड़ी है उससे भी फॉरेंसिक शवाहिद जो है वो इकट्ठे करने की कोशिश की जा रही है दोनों गाड़ियों से। तो जो भी उनका कहना है कि हम फॉरेंसिक के जरिए भी आगे बढ़ेंगे और जो दीगर लीड्स हमें मिल सकती हैं इस वाक़े के हवाले से उनको भी हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे उसमें जो है वो CCTV फुटेजेस हों या कोई दीगर लीड्स हों, हम उनको भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा फ़हीम सिद्दीकी, जिस तरह जैसे जैसे सिचुएशन क्लियर हो रही है तो जिस तरह पहले बात हो रही थी कि 2 वाक़यात हैं, लेकिन अब ये एक ही वाक़या है, 2 गाड़ियों को निशाना बनाया गया और एक गाड़ी में मुफ्ती तकी उस्मानी सवार थे। एक बार फिर हमारे नाज़रीन को तफसीलन बताइएगा कहाँ पर निशाना बनाया गया गाड़ी को, कितने अफराद जाँ बहक हुए, शनाख्त के बारे में बताइएगा, कितने अफराद ज़ख्मी हैं। जी वाक़या गुलशन इकबाल में नीपा चुरंगी के पास पेश आया है और ये एक ही वाक़या है। इससे पहले इतलात थी कि 2 वाक़या जिनमें से एक नीपा चुरंगी और दूसरा शार फैसल पर नर्सरी के मुकाम पर पेश आया, लेकिन अब इस बात की कंफर्मेशन हो चुकी है कि ये एक ही वाक़या है और इस वाक़े में 2 गाड़ियों को जो है वो टारगेट किया गया मोटरसाइकिल पर सवार मुसल्लह अफराद की जानिब से। दोनों गाड़ियाँ जो हैं दारुल कुरंगी से मुताल्लिक थी, इनमें से एक में मुफ्ती तकी उस्मानी और उनके अहल खाना थे, जबकि दूसरी गाड़ी में उनका एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड और एक ड्राइवर जो जिसका ताल्लुक भी दारुल उलूम से है वो था। ये दोनों अफराद में से एक जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है सनोबर खान ये जाँ बहक हुआ है, जबकि जो गाड़ी का ड्राइवर था वो शदीद जख्मी है जिसका नाम आमिर साहब बताया जा रहा है। जबकि जो मौलाना तकी उस्मानी जिस गाड़ी में मौजूद थे उसमें एक पुलिस गार्ड मौजूद था जिसका नाम मोहम्मद फारूक पता चला है, उसका ड्राइवर जो था सरफराज, ये सरफराज जख्मी है, जबकि दोनों गाड़ियों के गार्ड जख्मी हुए हैं, गार्ड हलाक हुए हैं और दोनों गाड़ियों के ड्राइवर जो है वो जख्मी हैं। सही। और जिस तरह आप बता रहे हैं 2 मोटरसाइकिलों पर 4 दहशतगर्दों ने फायरिंग की है, ये अभी तक की जो इंफॉर्मेशन है आप बता रहे हैं।
जी, पुलिस ने ये इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी की है अभी तक कि 2 मोटरसाइकिलों पर मुमकिन तौर पर 4 अफराद थे जिन्होंने गाड़ियों पर 9mm पिस्तौल की मदद से दोनों जानिब से फायरिंग की है और मौके से कुछ 20 से ज़ायद फॉल जो है वो मिले हैं 9mm के, जिन्हें जो है वो बैलिस्टिक डिपार्टमेंट जो है वो चेक कर रहा है उनके किसी रिकॉर्ड को, कि उनका कोई बैलिस्टिक डिपार्टमेंट के पास जो रिकॉर्ड होता है कि मुख्तलिफ वाक़यात का जो वाक़यात के फॉल मिलते हैं उनको जो जिस तरह से अपने पास सेव करके डेटा मुरतब किया जाता है उस डेटा में कहीं मैचिंग हो जाए ताकि ये पता चल सके कि क्या ये असला पहले भी किसी वारदात में इस्तेमाल हुआ है या नहीं। सही है, फ़हीम सिद्दीकी साथ ही रहेगा। पुलिस के मुताबिक नीपा चौरंगी के करीब गाड़ी पर 2 अतराफ से मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने फायरिंग की है। गाड़ी के करीब से 9mm पिस्टल के 9 खौल मिले हैं। आपने तफसीलन अपडेट किया, फ़हीम सिद्दीकी, बहुत शुक्रिया आपका, और आपसे मुसलसल डिटेल्स लेते रहेंगे। इस वाक़े से मुतालिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी नोटिस लिया है, जबकि एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब का कहना है कि मुमकिन तौर पर 2 मोटरसाइकिलों पर 4 दहशतगर्दों ने फायरिंग की। एनी शाहिदीन के मुताबिक दहशतगर्द फायरिंग करके फरार हो गए, जबकि ये भी इंफॉर्मेशन मिली है। राजा उमर खताब ने यह भी कहा है कि मुमकिन तौर पर मुफ्ती तकी उस्मानी का ताक़ुब किया गया, बाकायदा रेकी के बाद कारों पर फायरिंग की गई, जबकि मुफ्ती तकी उस्मानी ने हमारे सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी से गुफ्तगू की और बताया कि अभी कुछ पता नहीं कि ये किसने किया होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि वो महफूज रहे, उनके साथ उनकी फैमिली भी मौजूद थी और इस वाक़े में गार्ड की डेथ हो गई, ड्राइवर महफूज रहे, जबकि उनकी फैमिली भी उनके साथ ही सवार थी। उन्होंने ये भी बताया कि दहशतगर्दों ने पहले रेकी करते हुए पीछे से फायरिंग की और उसके बाद आगे जाकर मुड़कर फिर फायरिंग की। गाड़ी पर 2 अतराफ से मोटरसाइकिल मुलजमान ने फायरिंग की। फायरिंग के वाक़े में गाड़ी में सवार 2 अफराद अंजाम बहक हुए और जिस तरह हम बता रहे हैं कि ये मुफ्ती तकी उस्मानी को टारगेट किया गया, उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई, लेकिन वो इस हमले में महफूज रहे। फायरिंग के वाक़े में गाड़ी में सवार 2 अफराद जाम बहक हो गए। बताया जा रहा है आमिर शहाब जो कि ज़ख्मी है, डायरेक्टर जिना हॉस्पिटल सीमी जमाली ने गुफ्तगू की और बताया कि आमिर शहाब ज़ख्मी हैं, वेंटिलेटर पर हैं, जबकि जाम बहक अफराद के बारे में बताया जा रहा है कि मोहम्मद फारूक नामी एक पुलिस एहलकार है और सनोबर खान इस वाक़े में, अफसोसनाक वाक़े में जाम बहक हुए हैं। अपडेट करें आपको, मुफ्ती तकी उस्मानी पर फायरिंग में मोहम्मद फारूक नामी पुलिस एहलकार जाम बहक हुआ है, सनोबर खान जाम बहक हुआ है, जबकि आमिर फारूकी का कहना है कि मुसल्लह अफराद ने दोनों गाड़ियों पर 9mm पिस्तौलों से फायरिंग की। हमें ज्वाइन किया है AIG कराची, पुलिस चीफ कराची, डॉक्टर अमीर शेख ने। अमीर शेख साहब, ये जो वाक़या हुआ है इससे मुतल्लिक क्या डिटेल्स हैं? इसके मुतल्लिक हम बस जिस तरह अभी हमने क्लियर किया कि ये 2 वाक़यात नहीं है, एक वाक़या है, बहुत अफसोसनाक वाक़या है, क्योंकि इसमें वाक़े में मौलाना तकी उस्मानी साहब, मैं समझता हूँ ही इज़ अ टावरिंग पर्सनैलिटी, ये हर फ़िरका वारियत से पाक एक शख्सियत हैं जिनका हर मकतबा फ़िक्र के लोग, फ़िरके के लोग तमाम इज़्ज़त की निगाह से इनको देखते हैं। इनको टारगेट करने की कोशिश की गई। ये आते थे हमेशा की तरह बैतुल मुकर्रम मस्जिद में नमाज पढ़ाने आ रहे थे, तो उनके साथ अपनी गाड़ी में एक पुलिस का गार्ड था, तो ये अपनी फैमिली के साथ पिछली सीट पे थे और ड्राइवर थे, और दोनों को उन्होंने शायद उनकी रूटीन ये रही होगी कि आगे बैठते होंगे तो उनको फ्रंट से 4 मोटरसाइकिल पे सवार 2 मोटरसाइकिल में सवार 4 हमलावरों ने हमला किया, जिनमें इनका जो फारूक है पुलिस एहलकार वो शहीद हुआ, उनके साथ इनका ड्राइवर जख्मी हुआ। पिछली गाड़ी में सनोबर खान उनका सिक्योरिटी गार्ड था, प्राइवेट गार्ड, उनके साथ मौलाना साहब थे, वो शदीद जख्मी है, ही इज अंडर ट्रीटमेंट द हॉस्पिटल। अभी तक हमें यही लग रहा है कि जो पिछले जो वाकयात हुए फिरका वारियत के, हम अभी तक हमारी सरेदस यही एक इनिशियल राय ये है कि ये उसका तसलसल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी साजिश थी कराची के अमन को, या बल्कि कहें कि पाकिस्तान के अमन को सबोटाज करने की, इंतशार फैलाने की, क्योंकि ऐसी शख्सियत को हिट करना जिससे हर मकतबा फिक्र में एक टेंशन फैलती और बहुत गलत इंप्रेशन जाता। अल्लाह ने करम किया, मैं उनसे खुद मिला हूँ हॉस्पिटल में, वो महफूज हैं, और इसमें अभी तक हम CCTV फुटेज को देख रहे हैं, हमारी टीमें उस पर काम कर रही हैं, और हम अभी मौके से अभी तक हमें 15 खोल मिले हैं 9mm के, और मिक्स किस्म की आ रही हैं कि जो हमलावर थे उन्होंने कोई कह रहा है कि जी जो शायद जो लोग हैं वहाँ पे नहीं, शायद वो कह रहे हैं, कोई कहता है कि जी पहनी हुई थी, हेलमेट्स पहनी हुई थी, कोई कह रहा नहीं, तो हम इसको मजीद डिटरमिन कर रहे हैं। हम अभी खुले ज़हन से करेंगे। हमारी सरेदस यही है कि एक साजिश थी बहुत बड़ी, कराची के मुल्क को, पाकिस्तान के मुल्क को सबोटाज करनी। डॉक्टर साहब, आप जिस तरह बता रहे हैं कि आपकी मुफ्ती तकी उस्मानी से गुफ्तगू भी हुई है, उन्होंने धमकियों का जिक्र किया, गवर्नर सिंध से भी बात करते हुए, अंसार अब्बासी हमारे सीनियर सहाफ़ी से भी बात करते हुए उन्होंने बात की। आपसे कोई उन्होंने पहले इस बारे में इन धमकियों से मुतालिक, सिक्योरिटी थ्रेट से मुतालिक कोई गुफ्तगू की या आज कोई बात की?
आज भी उन्होंने मेरे साथ धमकियों की बात दी कि उनको सिक्योरिटी मिली हुई थी, क्योंकि हमारी एक कमेटी है, थ्रेट असेसमेंट कमेटी, जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से कमेटी बनी हुई है। उसके होम सेक्रेटरी चेयरमैन है, उसमें तमाम इदारे के लोग जो है वो मेंबर्स होते हैं। जो जिनको सिक्योरिटी थ्रेट्स मिलती हैं वो अपनी दरख्वास्त देते हैं, वो एग्जामिन होती है, वो कमेटी तय करती है, क्योंकि तमाम इसमें इदारे, इंटेलिजेंस इदारे भी होते हैं, रेंजर्स, पुलिस के तमाम के रेप्स होते हैं, वो तय करते हैं। तो अकॉर्डिंग उनको मिली हुई थी सिक्योरिटी। अभी जाहिर है, अभी क्योंकि उनको जितनी सिक्योरिटी जो थ्रेट असेस कमेटी ने तय किया था वो मिली हुई थी। अभी हम जाहिर है आज बातें हुए, इसमें मैंने उनके साथ सिक्योरिटी बढ़ा दी, उनको अपना नंबर भी दोबारा दे दिया कि आप प्लीज अगर समझते हैं तो हम आइंदा जो है ना इनकी सिक्योरिटी जाहिर है आज के हिसाब से हमने वो बढ़ा के भी दी है। अच्छा। लेकिन जो थ्रेट, जी हाँ जी अमीर शेख साहब, कुछ ये पता चला जो मुसल्लह अफराद हैं वो कहाँ गए, किधर छुप गए, उनसे मुतल्लिक क्या लीड है? और ये भी बताइएगा कि जुमे का दिन है, गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात होते हैं, हाई अलर्ट होती है, उसमें ऐसा वाक़या हो जाना और नीपा के मकाम पर? इसमें गुजारिश है कि जो हमारी सिक्योरिटी हाई अलर्ट बिल्कुल आज भी थी, उसमें हमारा सारा फोकस अभी जो है ना मसाजिद, इमाम बारगाह और जो न्यूजीलैंड में वाक़या उसके बाद चर्चेज, उस हवाले से था। और बैतुल मुकर्रम मस्जिद जहाँ तशरीफ ला रहे थे उधर बहुत ज़्यादा फोकस था। तो ये बिल्कुल सही है कि इसमें ज़ाहिर है हमलावर वो जगह ढूंढते हैं जहाँ पे उनको नजर आता है कि कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, तो उन जहाँ पे वो जा रहे थे उधर उनका सिक्योरिटी थी। मजीद हम इसमें ना प्रोब कर रहे हैं सीसीटीवी फुटेज के जरिए कि हमलावर कहाँ से आए, कहाँ गए। तो हम इंशाल्लाह ताला हम तमाम इदारे मिलकर इस पे काम करेंगे, जो हमारा सीसीटीवी है और दीगर इदारे हैं मिलकर इस पे करेंगे इंशाल्लाह ताला। आप ये कह रहे हैं कोशिश करेंगे कि तमाम को। ठीक है, मजीद तहकीकात जारी हैं और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। कराची में दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया, मुमताज़ आलम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी की गाड़ी पर फायरिंग। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.